وینس کا سوداگر۔ وینس کے شہر میں ایک آدمی رہتا تھا جس کا نام شیلوک تھا۔ وہ مہاجنی کا کاروبار کرتا تھا اور عیسائی سوداگروں کو سود پر روپیہ خرچ دیتا تھا۔ اس طرح اس نے بہت سی دولت جمع کر لی تھی۔ وہ بڑا سنگ دل آدمی تھا اور اتنی ہی بے دردی سے اپنا روپیہ وصول کرتا تھا کہ تمام اچھے لوگ اسے ناپسند کرتے تھے۔ وینس کا ایک نوجوان سوداگر اینٹونیو تو اس سے دلی نفرت کرتا تھا اور شیلوک کو بھی اینٹونیو سے نفرت تھی، کیونکہ وہ ضرورت مندوں کو وقت پر روپیہ خرچ دیتا تھا اور ایک پیسہ بھی سود نہیں لیتا تھا۔ اس لیے اس بخیل اور دریادل سوداگر اینٹونیو کے درمیان بڑی دشمنی پیدا ہو گئی تھی۔ جب کبھی اینٹونیو صرافے میں شیلوک سے ملتا تو اس کی سود خوری پر اسے ملامت کرتا، جسے وہ بخیل خاموشی سے برداشت کر لیتا، لیکن دل ہی دل میں انتقام لینے کے منصوبے باندھتا رہتا۔ اینٹونیو بڑا رحم دل آدمی تھا۔ دنیا کا سرد و گرم چکھ چکا تھا اور لوگوں کے ساتھ بڑی مہربانی سے پیش آتا تھا۔ وہ قدیم رومی وقار کا نمونہ تھا۔ اس کے ہم وطن اس سے بڑی محبت کرتے تھے، لیکن اس کا سب سے گہرا دوست وینس کا ایک شریف زادہ بیسونیو تھا، جس کے پاس چھوٹی سی آبائی جائیداد تھی۔ لیکن جیسا کہ عام طور پر بڑے خاندانوں کے نوجوانوں کا طریقہ ہوتا ہے، اس نے اپنی چادر سے باہر پاؤں پھیلا دیے تھے۔ اس نے فضول خرچوں سے اپنی جائیداد ختم کر دی تھی۔ جب کبھی بیسونیو کو روپیے کی ضرورت ہوتی، اینٹونیو اس کی مدد کرتا اور ایسا معلوم ہوتا تھا وہ ایک جان دو قلب ہے۔ وہ دونوں ایک تھیلی سے روپیہ خرچ کرتے تھے۔ ایک دن بیسونیو اینٹونیو کے پاس آیا اور اس سے کہنے لگا کہ میں ایک امیر عورت سے شادی کر کے اپنی مالی حالت بہتر بنانا چاہتا ہوں، جس کا باپ بہت سی جائیداد چھوڑ کر مرا ہے۔ وہ اس عورت سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ وہ اس عورت کے باپ کی زندگی میں اس کے گھر جایا کرتا تھا اور محسوس کیا کرتا تھا کہ جیسے وہ اپنی خاموشی نگاہوں سے اسے محبت کا پیام دے رہی ہے۔ لیکن ایسی دولت مند عورت کا عاشق ہونے کے لیے یہ بھی تو ضروری تھا کہ اس کی ظاہری شکل و صورت اس کے شانہ شان ہو۔ اس لیے اس نے اینٹونیو سے درخواست کی کہ وہ اسے 3000 ڈیوکٹ یعنی اطالوی سکے بطور قرض دے۔ اینٹونیو کے پاس اس وقت اتنا روپیہ نہیں تھا کہ وہ اپنے دوست کو قرض دے سکے، لیکن اسے یہ یقین تھا کہ اس کے تجارتی جہاز بہت جلد واپس آ جائیں گے۔ اس نے کہا کہ وہ ان جہازوں کی ضمانت پر شیلوک کے پاس گئے اور اینٹونیو نے اس بخیل سے 3000 ڈیوکٹ قرض مانگے اور کہا کہ وہ اس پر منمانا سود لے سکتا ہے۔ یہ سن کر شیلوک دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ اگر میں اسے ایک بار کمر سے پکڑ لوں تو اپنے پرانے باز اور کینے کو تسکین دے سکتا ہوں۔ یہ ہماری قوم سے نفرت کرتا ہے، یہ بغیر سود کے روپیہ خرچ دیتا ہے اور سود سوداگروں کے بیچ میں کھڑا ہو کر میری مذمت کرتا ہے اور اس محبت کی گاڑی کمائی کی برائی کرتا ہے جسے وہ سود کے نام سے یاد کرتا ہے۔ لعنت ہے میری قوم پر اگر میں اسے معاف کر دوں۔ اینٹونیو جو روپیہ حاصل کرنے کے لیے
बेताब था। यह देखकर वो सोच में पड़ गया है। बोला, शेरलॉक, कुछ सुनते हो या नहीं? बोलो, मुझे रुपया खर्च दोगे? इस सवाल पर वकील ने जवाब दिया, एंटोनियो, तुमने सराफे में कई बार मेरे रुपये और मेरी सूदखोरी पर मेरी बुराई की है, और मैंने बड़ी सब्र से तुम्हारी बातें बर्दाश्त की है, क्योंकि सब्र और बर्दाश्त हमारी कौम का तर्राए इम्तियाज़ है। इसके अलावा वह तुमने मुझे बेईमान, खून आशाम, कुत्ता और ना जाने क्या क्या कहा है। तुम मेरे लिबास पर थूक चुके हो और मुझे ठोकर मार चुके हो, और अब तुम मुझसे आकर कहते हो, शेरलॉक, मुझे रुपया खर्च दो। क्या कुत्ते के पास रुपया होता है? क्या ये मुमकिन है कि कुत्ता तुम्हें 3,000 ड्यूकट खर्च दे सके? क्या मैं आपके सामने सर झुकाकर कहूँ कि जनाब, आप मुझे पिछले बंद पर मुझ पर थूका, फिर एक दिन मुझे कुत्ता कहा, और अब इस शरीफाना सलूक के बदले मैं आपको रुपया खर्च दूँ? यह सुनकर एंटोनियो ने जवाब दिया कि मैं फिर तुम्हें उन्हीं नामों से याद करूँगा, तुम्हें फिर ठोकर मारूँगा। अगर तुम मुझे खर्च दे सकते हो तो दोस्त समझकर नहीं, बल्कि दुश्मन समझकर खर्च दो, और अगर अपना वादा पूरा ना करूं तो तुम जितना दाम चाहो ले सकते हो। ज़रा देखना, शेरलॉक ने कहा, तुम कैसे अकड़ रहे हो? मैं तुम्हारा दोस्त बनकर तुम्हारी मोहब्बत हासिल करना चाहता हूँ। मैं उस हक़ारत और नफ़रत को भूल जाऊँगा जो तुमने मुझे दी है। मैं तुम्हारी ज़रूरत पूरी कर दूँगा और अपने रुपये पर एक पाई भी सूद नहीं लूँगा। यह ज़ाहिरी मेहरबानी देखकर एंटोनियो को बड़ा ताज्जुब हुआ। शेरलॉक इस तरह मेहरबानी और मलायमत का इजहार करता रहा कि वो एंटोनियो की मोहब्बत हासिल करना चाहता है। उसने कहा कि वो एंटोनियो को 3,000 ड्यूकट्स खर्च देगा और उस पर सूद नहीं लेगा। सिर्फ एक शर्त यह है कि वो उसके साथ किसी वकील के पास चलकर एक एग्रीमेंट पर महज तफरीहा दस्तखत कर दे। अगर वो मुकर्ररा दिन तक खर्च का रुपया अदा ना कर सके तो शेरलॉक को इसका हक होगा वो उसके बदन के किसी भी हिस्से से आध सिर गोश्त काट ले। मैं तैयार हूँ, एंटोनियो ने कहा। मैं इस एग्रीमेंट पर दस्तखत कर दूंगा और अब से कहूँगा कि वकील बहुत नरम दिल और मेहरबान आदमी है। बेसनियो ने एंटोनियो को इस एग्रीमेंट पर दस्तखत करने से बहुत रोका, लेकिन एंटोनियो किसी तरह नहीं माना, क्योंकि उसे यकीन था कि मुकर्ररा दिन तक उसके जहाज़ वापस आ जाएंगे और वो कर्ज की रकम से कहीं ज़्यादा माल और दौलत से भरे होंगे। दोनों दोस्तों का ये मुबाहसा सुनकर शेरलॉक ने कहा, या खुदा, ये लोग कितने शकी होते हैं। वो अपनी सख्त गहरियों की वजह से दूसरों पर भी शोभा करना सीख लेते हैं। मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ बेसनियो, अगर एंटोनियो अपना वादा पूरा ना कर सके तो मैं उसका गोश्त लेकर क्या फ़ायदा हासिल कर सकूँगा? इंसान के जिस्म का आध सेर गोश्त इतना कीमती और नफ़ा बख्श नहीं है जितना किसी जानवर का गोश्त। मैं तुम्हें बताता हूँ कि सिर्फ उसकी मोहब्बत हासिल करने के लिए मैं दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा हूँ। अगर उसे मंजूर है तो ठीक, वरना खुदा हाफिज़। आखिरकार बेसनियों के मशवरे के ख़िलाफ़, जैसे वकील के लत्फ़ व करम के वादों पर एतबार नहीं था और जो नहीं चाहता था कि उसका दोस्त अपनी जान खतरे में डालकर उसके लिए रुपया हासिल करे, एंटोनियो ने एग्रीमेंट पर दस्तखत कर दिए और उसे, जैसा कि वकील ने कहा था, महज तफरी समझता रहा। वो दौलतमंद औरत जिससे बेसनियो शादी करना चाहता था,
वेनिस के करीब एक जगह रहती थी जिसका नाम बलमांट था, और उस औरत का नाम पोर्शिया, और अपने जिस्मानी और रूहानी हुस्न व खूबी में उस पोर्शिया से किसी तरह कम नहीं थी, जिसका जिक्र हम किताबों में पढ़ते रहते हैं, और जो ब्र, ब्रोटस की बीवी थी। उस तरह अपने दोस्त की मेहरबानी से रुपया हासिल करके बेसनियो एक मास शख्स ग्रेशनियो को अपने साथ लेकर बलमाट को रवाना हो गया। बेसनियो अपने इरादे में कामयाब हुआ और बहुत जल्द पोर्शिया ने उससे शादी करने का वादा कर लिया। बेसनियो ने पोर्शिया को बता दिया कि उसके पास जायदाद और दौलत नहीं है, और वो सिर्फ अपने ख़ानदानी एज़ाज़ और नस्ली शराफत में पर फ़ख्र कर सकता है, मगर वह बेसनियों की नेक खसलतों पर फरिफ्ता थी और ख़ुद इतनी दौलतमंद थी कि अपने शौहर से दौलत हासिल करने की ख्वाहिशमंद नहीं थी। उसने बड़ी लुत्फ़ इनकिसार में जवाब दिया कि मैं अपने आप को 1000 दर्जे बेहतर और 10,000 दर्जे दौलतमंद समझूंगी अगर ख़ुद को तुम्हारी खिदमत के लायक बना सकूं। फिर शाइस्ता और मजहब पोर्शिया ने बड़ी खूबसूरती से अपनी खूबियों पर पर्दा डाला और कहा कि मैं तो अनपढ़ और गैर तरतीब याफ्ता लड़की हूँ, फिर भी मेरी उम्र अभी इतनी ज़्यादा नहीं है कि कुछ सीख ना सकूं। फिर उसने वादा किया कि वो दिलो जान से उसकी खिदमत करेगी और हर काम उसकी हिदायत के मुताबिक करेगी। मैं तुम्हारी हूँ और जो कुछ मेरा है वो सब तुम्हारा हो चुका है। कल तक बेसनियों में उस महल की शहजादी और आप अपनी मलका थी और उन नौकरों पर हुक्म चलाती थी, लेकिन अब ये घर और नौकर तुम्हारे हैं और मैं खुद भी तुम्हारी हो चुकी हूँ। ये तमाम चीज़ें मैं तुम्हें उस अंगूठी के साथ सौंपती हूँ। यह कहकर उसने बेसनियों को एक अंगूठी पेश की। दौलतमंद और शाइस्ता पोर्शिया ने जिस खुशगवार इनकिसार के साथ अपने गरीब शौहर को कबूल किया, उसे देखकर बेसनियो हैरान रह गया और उसके दिल में शुक्रगुज़ारी का ऐसा शदीद जज्बा पैदा हुआ जिसका इजहार नामुमकिन था। वो मोहब्बत और शुक्रिया के चंद अल्फाज बमुश्किल ज़बान से अदा कर सका। उसने वो अंगूठी कबूल कर ली और अहद लिया कि उसे कभी अपने पास से जुदा नहीं करेगा। जिस वक्त पोर्शिया ने उस खूबसूरती और लताफत के साथ बेसनियों की वफ़ादारी बीवी बनने का वादा किया, उस वक्त ग्रेशनियो भी वहाँ मौजूद था और पोर्शिया की खादिमा नरसिया भी। ग्रेशनियो ने बेसनियो और उसके दिल नवाज बीवी को मुबारकबाद दी और उसी वक्त खुद भी शादी करने की इजाज़त मांगी। बेसनियो ने जवाब दिया, अगर तुम अपने लिए बीवी मुहैया कर सकते हो तो मैं तुम्हें बड़ी खुशी से इजाज़त देता हूँ। तब ग्रेशनियो ने बताया कि वह पोर्शिया की शाइस्ता और हुस्न खादिमा नरसिया से शादी करना चाहता है। नरसिया ने ग्रेशनियो से वादा किया था कि अगर उसकी शहजादी बेसनियो से शादी कर लेगी तो वह खुद ग्रेशनियो की बीवी बन जाएगी। पोर्शिया ने नरसिया से उसकी तस्दीक की। नरसिया ने जवाब दिया, मेरी मुअज़्ज़ज़ खातून, यह सही है, बशर्ते कि आप मुझे उसकी इजाज़त दें। पोर्शिया ने बड़ी खुशी से इसकी इजाज़त दी और बेसनियो ने खुश तबीयत के साथ कहा, ग्रेशनियो, तुम्हारी शादी से हमारी शादी की दावत और भी शानदार हो जाएगी। उसी वक्त एक आदमी दाखिल हुआ और ऐसी खबर सुनाई जिसने उनकी खुशी पर पानी फेर दिया। वो एंटोनियो के पास से एक ख़त लेकर आया था जिसमें बड़ी खौफनाक बातें लिखी थी। थैंक यू। हेलो व्यूवर्स, मैं हूं आपका अपना दोस्त सलमान। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट करें ताकि मेरी हर आने वाली स्टोरी का नोटिफिकेशन आपको
ملتا رہے۔ اگر آپ کو یہ اسٹوری اچھی لگی تو اس اسٹوری کو بھی لائک کریں۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ تھینک یو فار واچنگ۔